हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा अरीना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड इट गिव्स डैश एरर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिंटैक्स एरर। Now next question. Which of the following is not an object oriented feature? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर नहीं है? इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है? यस। एब्स्ट्रैक्शन है? यस। पॉलीमॉर्फिज्म? यस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, abduction. Abduction is not a feature of object oriented programming. Moving on to next question. Which of the following statements are correct about modular programming approach? Statement 1, ease of use. Statement 2, reusability. तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये करेक्ट हैं फॉर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच. So the correct answer is option D, both 1 and 2. Next question. How the object interact with each other in object oriented programming? Object oriented programming के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं? Options are by transmitting signals, by ringing, by sending message or by text. So the correct answer is option C, by sending message. Question 5. What is the relation between object and class in an object oriented programming? Object और class में क्या relation होता है? So the correct answer is option C, object is instance of class. Question 6. Which of the following cannot be a variable name in C? C लैंग्वेज के अंदर इन गिवन ऑप्शंस में से हम किसे वेरिएबल नेम नहीं रख सकते? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, वॉलेटाइल, क्योंकि वॉलेटाइल जो है वो सी लैंग्वेज का एक कीवर्ड है, इसलिए हम उसे वेरिएबल नेम नहीं रख सकते. क्वेश्चन 7. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, when a new class created from an existing class using principle of inheritance, then the new class is known as? The answer is option C, child class. Now next question. Question 8. Which one of the following is correct regarding programming languages? ये सारी ऑप्शंस हम चेक करेंगे. So the correct answer is option B, object oriented programming. And objects, they are correctly related. Fine. Now next question. Which of the following statements are correct regarding void keyword in C++? Statement 1, to specify the return type of a function when it is not returning any value. It's true. Statement 2, to indicate an empty argument list to a function. It is also true. So the correct answer is option B, both 1 and 2. Next question. If P is an integer pointer, P जो है वो एक integer pointer है with a value 1000, then what will be the value of P plus 5? हमें पता है साइज ऑफ एन इंटीजर इज 4 बाइट्स. इंटीजर का साइज कितना होता है? 4 बाइट्स. तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देन P plus 5 will be at value 1000 plus 5 into 4, which gives you 1020.
So the correct answer is option A, 1020. Now next question. In the C language, the constant is defined. Constant को कहाँ define किया जाता है C language के अंदर? So the correct answer is option C. हम constant को कहीं भी define कर सकते हैं but starting on a new line. So the correct answer is C. Question number 12. Find the output of the following program. हमें ये एक प्रोग्राम का स्निपेट दे रखा है, हमने इसकी आउटपुट बतानी है कि क्या आएगी. इसमें ये हमसे स्ट्रिंग लेंथ पूछ रहा है. यहां लिखा है तुम्हें स्ट्रिंग लेंथ CH जो एरे है इसके अंदर स्ट्रिंग लिखा क्या हुआ है कंप्यूटर साइंस. तो जब हम इसकी आंसर निकालेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे. कंप्यूटर जो है इसका टोटल आपका बन रहा है 8. ये 8 स्पेसेस ले रहा है. एक जो बीच में सिंगल स्पेस ये वाला आ रहा है वो प्लस 7. 8 and 8 plus 8 gives you 16. So the string length is option B, 16. Now question number 13. Which one is not a feature of Python language? इसमें से Python language का फीचर कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है. इसमें वो पूछ रहा है कि गिवन ऑप्शंस में से पाइथन लैंग्वेज का फीचर इसमें से कौन सा नहीं है. तो ऑप्शंस क्या है हमारी? पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यस इट्स ट्रू. पाइथन इज पोर्टेबल, ट्रू. पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, ट्रू. पाइथन केस इनसेंसिटिव है, ये गलत है. पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, because Python is case sensitive language and not case insensitive. Question 14. Which statement are not true about the variables in Python language? Statement 1 says values of every variable can be changed once a variable has been created and assigned value. Statement 2, assignment statement is used to create a new variable and assign value. Here your statement 1 is false and statement 2 is true. So the correct answer is option A. सिर्फ पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है. क्वेश्चन 15. इसका क्या मीनिंग है पाइथन लैंग्वेज के अंदर? ये जो आपको एक सिंबल दे रखा है इसका क्या मीनिंग है पाइथन लैंग्वेज के अंदर? ऑप्शंस चेक करते हैं. ऑप्शन ए सेज इट मींस इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन. ऑप्शन बी कंपाइलर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन. ऑप्शन सी इट डिनोट्स 3 राइट शिफ्ट्स और ऑप्शन डी इट डिनोट्स 3 लेफ्ट शिफ्ट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The given declaration statement in Python language belongs to which data type? ये हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, ये किस डाटा टाइप को डिनोट कर रही है? The answer is option A, dictionary. Question 17. Which of the following option leads to the portability and security of Java? Java में कौन सी इनमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है जो हमें जावा के पोर्टेबल और सिक्योर होने का एक रीजन देती है कि जावा जो है वो पोर्टेबल और सिक्योर है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय जावा वर्चुअल मशीन. हमें पता है जो आउटपुट होती है जावा कंपाइलर की वो बाइट कोड की फॉर्म में मिलती है. फाइन. वो जावा जो है जो जावा के अंदर जो आपका बाइट कोड होता है वो एक हाईली डेवलप्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसे जावा वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट करती है. जो भी जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है बाय द जेवीएम वो कोड को और ज्यादा पोर्टेबल और सिक्योर बना देता है, क्योंकि जेवीएम जो है वो प्रिवेंट करता है किसी भी कोड को उसके साइड इफेक्ट्स जनरेट करने से प्रिवेंट करता है.
ये जो जावा का कोड है ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल कैसे कहेंगे? क्योंकि हम सेम बाइट कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेमोरी a string is stored when we create a string using new operator? किस मेमोरी के अंदर हम स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे जब भी हम स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे यूजिंग न्यू ऑपरेटर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हीप मेमोरी। अगर हम न्यू ऑपरेटर से स्ट्रिंग क्रिएट करें तो वो हमेशा हीप मेमोरी में स्टोर होगा, और अगर हम स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग डबल कोट्स, अगर हम स्ट्रिंग जो है वो यूजिंग डबल कोट्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग की सेम वैल्यू को, जैसे कि स्ट्रिंग में वैल्यू है, वो सेम वैल्यू को सर्च करेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। अगर उसे वहां पे वो वैल्यू मिल जाती है तो वो उसका रेफरेंस वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा, और अगर वहां नहीं होती तो वो एक नया स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जावा जार स्टैंड्स फॉर, जार जो है वो किसकी एब्रीविएशन है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए जावा आर्काइव रनर, नो। जावा एप्लीकेशन रिसोर्स, नो। जावा एप्लीकेशन रनर, नो। तो जार किस लिए स्टैंड करता है? जार स्टैंड्स फॉर जावा आर्काइव। ये एक पैकेज फाइल फॉर्मेट होता है विच इज यूज्ड टू कंबाइन ऑल द मेटाडाटा एंड रिसोर्सेज इनटू अ सिंगल फाइल। या आप ऐसे कह लो कि ये एक फाइल होती है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं, विच मेकअप अ सेल्फ कंटेन्ड एग्जीक्यूटेबल और डिप्लॉयबल जार होता है विच इज यूज टू एग्जीक्यूट, जिसे यूज किया जाता है जावा एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए और जावा एप्लेट्स को डिप्लॉय करने के लिए। नाउ क्वेश्चन 20, द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑफ ASP। इसमें से कौन सी ASP की डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, VB script is the default scripting language of ASP. Now question number 21. Which of the following ASP components create an object that displays a different image each time a user enters or refreshes a page? The correct answer is option D, add rotator. Add rotator से related question आपको टीचिंग एग्जाम में एक तो जरूर मिलता है। Now next question, how do you get information from a form that is submitted using the post method? The correct answer is option B, request.form. ठीक है, next question, the .NET framework provides a runtime environment called .NET framework जो है वो जो रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं CLR, एंड CLR स्टैंड्स फॉर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। CLR जो होता है, it runs the code and provides services that makes the development process easier. Now last question, the namespace within the Microsoft .NET framework which provides the functionality to implement transaction processing is, the correct answer is option A, system.enterprise services. This is all for today. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल एंड ऊप कंसेप्ट्स को रिलेटेड।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी। थैंक यू।